Assalamu alaikum. Today we are discussing data collection techniques for qualitative research, and this is the sequel of last class discussion in which we discussed different data collection techniques. So can anyone please revise what we discussed in our last class? Okay. Yes. In our last class, we discussed different data collection techniques. One of them is observation. The other, and the types of observation. The other one is interview and the types of interviews, and document analysis, focus group discussion. In observation, we discuss two main types of observation. The first type of observation is participant observation, and the other type of observation is non-participant observation. In participant observation, most of the time, researcher disguise him or herself and do not disclose his or her identity and collect data in a natural setting. Most of the time we conduct participant observation in ethnographic research, but you can conduct participant observation in other types of qualitative design like phenomenology, narrative, case study. Even in grounded theory, you can be a participant observer as well as a researcher. Sometimes researcher disclose his identity and sometimes researcher disguise his identity. If researcher did not want to disclose his identity, so this type of observation is called unobtrusive observation, and this is implicit type of observation in which the identity is hidden, and the explicit type of observation, the identity is explicit in nature, and the participants, they know that they are being observed. For observation, we collect data with the help of a tool, and the tool is called observation checklist, and the other tool is descriptive notes. So we use different types of tools to collect data with the help of observations. And what observation is? It is a technique that involves systematically selecting, watching, and recording behavior and characteristics of living beings, objects, or phenomena. Observation cannot be conducted without getting a training, because an observer has to observe not only the actions, but he has to record feelings. He has to sketch a scene in which he or she is conducting an observation. So you need to heighten your sensitivity to details that you would normally ignore, and at the same time to be able to focus on a phenomenon of true interest of your study. What is the role of observer? It is the responsibility of observer to record the events and to record the actions without including subjectivity. So you have to record as it is what you are observing. Like, try to reduce subjectivity. आपने अपना ओपिनियन, परसेप्शंस, फीलिंग्स वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करनी है, उनको वहाँ पे नहीं लिखना. बट यस, यू कैन रिकॉर्ड योर फीलिंग्स इन साइड नोट्स. आपने एक कॉलम ड्रॉ कर सकते हैं और वहाँ पे अपने साइड नोट्स लिख सकते हैं, लेकिन जो आपका ऑब्जर्वेशन टूल है वहाँ पर आप ऑब्जेक्टिविटी को यूज़ करते हुए आपने जो है वो ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है. आपके पास what is the process of observing a phenomenon? The first thing is you have to select a site in which you conduct your observation. When you enter in a site, so you have to gain informed consent. आपने permission लेना होगी if you are a non-participant observer, or even you are a participant observer, but if your observation is explicit in nature, like it is not hidden, it is
known. So अगर लोगों को पता है कि you are observing a phenomenon and you don't want to disguise yourself, so आपने जो है वो permission लेना होगी कि आप इस event को record करने जा रहे हैं, and you have to discuss the observation criteria कि आप क्या क्या चीज़ें observe करेंगे, and you should you should gain trust, and you should ensure कि आप जो है उनकी जो और कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करेंगे कि वॉट एवर यू आर ऑब्जर्विंग दिस इज़ ऑब्वियसली कल्चरली, इफ़ इट इज़ कल्चरली सेंसिटिव, सो यू विल नॉट डिस्क्लोज द आइडेंटिटी कि फ्रॉम वेयर यू आर डूइंग दिस ऑब्जर्वेशन. You can use not only observation notes, checklist use कर सकते हैं, manual notes ले सकते हैं, you can record your observation, you can record audio, you can record video, but with the permission of your participants or respondents. You have to conduct multiple observations to observe a single phenomenon, because maybe in one of the observation you can find something different, and in other observation you can find the different things. So just to validate your finding, you have to conduct multiple observations. The minimum number of observations are 3 and the maximum number of observations are 7. Try to keep observation time short, like 20 to 30 minutes, not more than this, because अगर आप इससे ज़्यादा अपना observation time रखते हैं तो फिर focus out हो जाता है. जिनको आप observe कर रहे हैं वो जो है uncomfortable feel करते हैं और जो है वो बहुत ज़्यादा distractions आने लगती हैं. So लिहाजा जो है observation का time जो है वो short रखें, 15 to 30 minutes, not more than this. As I have already discussed कि you have to determine or you have to consider कि what type of information you are you will record during an observation. So आपके पास पहले से एक criteria होना चाहिए और आपके पास पहले से कोई tool होना चाहिए to record observation. और ethical guidelines ये हैं कि you should share your observation tool with your participants. आप जो ऑब्जर्वेशंस अगर आप चेकलिस्ट के थ्रू भी कर रहे हैं, सो आप डिस्क्रिप्टिव नोट्स भी ज़रूर लिखें. और नॉट ओनली डिस्क्रिप्टिव फील्ड नोट्स एज वेल एज रिफ्लेक्टिव फील्ड नोट्स. इन डिस्क्रिप्टिव फील्ड नोट्स आप जो है वो ऑब्जेक्टिविटी को इंश्योर करते हैं एंड यू रिकॉर्ड ओनली फैक्ट्स कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, आप देख क्या रहे हैं. एंड योर आइज़ एंड ऑब्जर्वर्स आइज़ आर लाइक अ कैमरा. सो आपकी आँख जो देख रही है आप एग्जैक्ट एज इट इज़ वही रिकॉर्ड कर रहे हैं इन डिस्क्रिप्टिव नोट्स. बट इन रिफ्लेक्टिव नोट्स जो आप परसीव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक क्लास में मैं ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ और ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन मैं देख रही हूँ कि तमाम बच्चे किसी टास्क में बिजी हैं, बट वन ऑफ द स्टूडेंट इज़ इन्वॉल्व्ड इन प्लेइंग विद पेंसिल एंड टीजिंग अदर्स एंड ऑल दीज थिंग्स. सो in descriptive note I have to write as it is कि what student is doing, playing with pencil, teasing other student, like dragging hair, touching, is snatching books, किसी भी तरीके से वो दूसरे बच्चों को तंग कर रहा है. इसके अलावा बट आपके रिफ्लेक्टिव नोट्स में आप लिख सकते हैं कि आपको क्यों लग रहा है कि वाई ही इज़ बिहेविंग इन दिस वे. मे बी उसको समझ में नहीं आ रहा, लिहाजा वो दूसरी चीज़ों में बिज़ी हो गया है. मे बी टॉपिक उसके इंटरेस्ट का नहीं है, इसलिए वो जो है ना दूसरी एक्टिविटी में बिज़ी हो गया है. मे बी टीचर उसको अटेंशन नहीं दे रही है, जिसकी वजह से वो जो है वो दूसरी एक्टिविटी में बिज़ी. तो ये चीज़ आपके रिफ्लेक्टिव नोट्स में जाएगी, बट आपके और ये सब्जेक्टिविटी यहाँ पर आ सकती है. बट इन डिस्क्रिप्टिव नोट्स सब्जेक्टिविटी को आप बिल्कुल माइनस कर देंगे. मे बी इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपकी जो नोट्स होंगे, इवन आपके डिस्क्रिप्टिव नोट्स, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी दिखेगी. बट इन सेकेंड एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन आप खुद ब खुद सब्जेक्टिविटी को रिड्यूस करते जाएंगे. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ब्रैकेटिंग. आप ब्रैकेट करते हैं अपनी सब्जेक्टिव थॉट्स को.
मेक योर सेल्फ नोन बट रिमेन अनऑब्ट्रूसिव। आपने अपने आप नोन तो हैं, पता तो है कि यू आर ऑब्जर्विंग, बट ट्राई टू बी नॉन पार्टिसिपेंट और ट्राई टू बी नॉन पार्टिसिपेटिव। आपने बिल्कुल क्लासरूम एक्टिविटी में, इफ़ यू आर अ नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर, सो आपने क्लासरूम एक्टिविटी में किसी भी किस्म का, या जिस फिनोमिनन को आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उसमें आपने किसी भी किस्म की एक्टिविटी में पार्ट नहीं करना। आफ्टर ऑब्जर्विंग स्लोली विदड्रॉ फ्रॉम दिस साइड। आपको अल्लाह हाफिज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है वो अपने सामान को समेटना और एक मैस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि साइलेंटली जो है आप उस साइड से विदड्रॉ कर जाएंगे। As I have already discussed कि what are the steps involved in participant or non-participant observation. First you have to gain entry. आपने consent gain करना है, आपने permission लेनी है कि आप इस साइट को या इस phenomenon को observe करेंगे। फिर सिर्फ कॉन्सेंट लेना काफ़ी नहीं है, एक आध कोई मीटिंग ऐसी जिसमें आप रेपो बिल्ड करें, बिकॉज व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप उनकी एक्टिविटी को ऑब्ज़र्व करने जा रहे हैं विच इज़ अ थ्रेटनिंग एक्ट, और इट कैन बी अ थ्रेटनिंग एक्ट कि उनको लगेगा कि आप उनकी रिपोर्ट कहीं कर देंगे, आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जो अगर उनसे ज़रा सी भी गलती हो जाएगी तो वो उनके अप्रेज़ल में रिफ़्लेक्ट करेगा, या ये जो है ना हेड टीचर को रिपोर्ट हो जाएगा। तो ये आपकी जो ऑब्ज़र्वेशन है ये थ्रेटनिंग होती है फॉर पार्टिसिपेंट, चाहे आप किसी भी सेटिंग में कर रहे हो। तो लिहाजा आपने एक रेपो बिल्ड करना है कि जी आप हमारी जो ऑब्ज़र्वेशंस होंगी वो कॉन्फिडेंशियल होंगी, आपका नाम डिस्क्लोज़ नहीं होगा, या हम उसको इस तरह प्रेजेंट करेंगे कि वो बहुत माइल्ड होगा और नेगेटिव नहीं होगा। आपने डेवलपिंग अ मेथड फॉर टेकिंग फील्ड नोट्स, आपने जो है एक टूल डेवलप करना है कि आप ये नोट्स लेंगे कैसे, एंड इंटीग्रेटिंग डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस। पैसिव पार्टिसिपेशन होगी, मॉडरेट पार्टिसिपेशन भी हो सकती है, लाइक if students are watching video games or if children are watching video game, so how can you moderate your participation? Like you can ask question during observation, you can advise them कि they can watch this they can play this video game, so in this way they can record their observation. You can record your observation in a moderate way. Active participation is a kind of participation in which researcher is part of setting. ना सिर्फ ये कि वो रिकॉर्ड कर रहा है ऑब्जर्वेशंस को, बल्कि वो ख़ुद भी उसमें हिस्सा ले रहा है। समटाइम एक टीचर ना सिर्फ ये कि वो ऑब्ज़र्वर होता है, बल्कि वो रिसर्चर, बल्कि वो पार्टिसिपेंट भी होता है, और इथनोग्राफर ख़ुद भी ऑब्ज़र्वर भी होता है और सेटिंग का पार्ट भी होता है। So this type of participation is called active participation. Key things to observe, आप सेटिंग को ऑब्ज़र्व करते हैं कि आपके आसपास जो जगह है वो कैसी है, आप क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड की पोजीशन क्या है, स्टूडेंट्स का सिटिंग अरेंजमेंट क्या है, अगर कोई रिसोर्स रूम है या जो है चार्ट्स डिस्प्ले हैं या सॉफ्ट बोर्ड डिस्प्ले है वो कहाँ पर है। तो आप एक पूरा मैप ड्रॉ करते हैं उस क्लासरूम का बिफोर कंडक्टिंग एन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, कि बच्चे कहाँ बैठे हुए हैं, जो है टीचर की पोजीशन क्या है, ब्लैक बोर्ड कहाँ पर है, सॉफ्ट बोर्ड का डिस्प्ले कहाँ पर है, अगर कंप्यूटर उस ऑफिस में उस क्लासरूम में प्लेस है तो वो कहाँ पर है। सो यू कैन ड्रॉ अ मैप ओवर दिया। देन एक्टर के हु आर पार्ट ऑफ दैट सेटिंग, सो टीचर, बच्चे, पार्ट ऑब्जर्वर इटसेल्फ, इसके अलावा क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ऑल दीज थिंग्स। Then
टाइप ऑफ फील्ड नोट्स, आप फील्ड नोट्स लेते कैसे हैं? एक तो चेकलिस्ट होती है जिसमें आप यस नो नॉट एप्लीकेबल करते हैं, और साथ साथ जैसे मैंने आपसे कहा कि आप नोट्स भी लेते हैं। जब आप नोट्स लेते हैं, ये नोट्स जो हैं ये पैराग्राफ फॉर्म्स में हो सकते हैं, ये पॉइंट्स या बुलेट फॉर्म्स में हो सकते हैं, ये सेंटेंस फॉर्म में हो सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप जो है ये जो है वो कैसे लेंगे। आप वर्बटिम रिकॉर्ड कर सकते हैं, एग्जैक्ट वही सेंटेंस आप कोट कर सकते हैं जो कि आपने वहाँ पे सुने हैं। अच्छा, ये सिर्फ जब ही मुमकिन है जब आप वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हों, अदरवाइज़ ये मुमकिन नहीं होगा। अच्छा, कुछ बहुत ही क्रिटिकल इंसिडेंट्स होते हैं, इनकी मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं। फॉर एग्जांपल, मैं एक ऑब्जर्वेशन कर रही थी एट हायर एजुकेशन लेवल, और वहाँ पर मैंने देखा कि टीचर ने शुरू में तो प्रिटेंड किया कि ही इज़ अ वेरी एक्टिव एंड यू नो अ काइंड ऑफ वेरी कॉम्पिटेंट टीचर, लेकिन थोड़े देर बाद लाइक 15 ऑब्जर्वेशन 3 आवर्स की थी, और विच वॉज टू मच। सो 3 आवर्स की ऑब्जर्वेशन में वो बहुत ज़्यादा प्रिटेंड वैसे भी नहीं कर सकते। तो फिर क्या होता है कि वो अपने असल बिहेवियर पे आ जाते हैं, और जब वो अपने एक्चुअल बिहेवियर पे आ जाते हैं, सो फिर क्या होता है कि जो सेकंड हाफ था उसमें टीचर फिर अपने एक्चुअल बिहेवियर पे आ गया, और टीचर ने जो है वो कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स पास किए जैसे, अच्छा, ही वॉज अ रिटायर्ड कर्नल एंड ही वॉज टीचिंग मैनेजमेंट साइंस स्टूडेंट। सो उसने कहा कि मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। सो दैट वॉज अ स्टेटमेंट विच आई रिकॉर्डेड एज इट इज़, कि मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। इसी तरह से एक और टीचर ने एक स्टेटमेंट पास किया विच इज़ नॉट एप्रोप्रिएट, कल्चरली नॉट एप्रोप्रिएट, और उसने जो है वो एक बच्चे से कहा कि अब बताते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बट दैट वाज यू नो अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट विच अ टीचर पास, जानू ये ऐसे नहीं ऐसे है। सो अब आपने स्टूडेंट से किस तरह से बात करनी है, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। सो ये 2 स्टेटमेंट है, एक तो टीचर बहुत ज़्यादा लविंग हो रहा है और वो बच्चे से इस तरह से बात कर रहा है, और एक टीचर बच्चे से बहुत ज़्यादा रूड हो रहा है। तो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट विच बोथ टाइप ऑफ टीचर पास। सो आपने इस तरह से ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करना है। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड ऑब्जर्वेशन इसके शेड्यूल विथ यू। मैंने आपसे एक ऑब्जर्वेशन करवाई भी थी, और मैंने आपसे डिफरेंट जो है वो उसके फॉर्मेट शेयर किए थे, और अगर आप अपना भी कोई फॉर्मेट इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो आई डोंट माइंड। ये मैंने आपको असाइनमेंट दिया था ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करने का। तो अब आप जिस टॉपिक पर रिसर्च करने जा रहे हैं, विच यू हैव सिलेक्टेड फॉर योर टर्म रिपोर्ट, और जिसका आपने प्रपोज़ल भी बनाया है, आपने उसकी कोई 10 मिनट्स की कोई सॉरी मैंने इनिशियली आपको 5 मिनट्स कही थी, तो 5 मिनट्स की कोई 3 ऑब्जर्वेशंस आपने रिकॉर्ड करनी है, और फिर आपने उन ऑब्जर्वेशंस की वैलिडिटी चेक करनी है, और उसकी इन टर्म्स ऑफ यू नो इंटेग्रिटी और इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी के ये जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं ये किस हद तक रिलायबल हैं, क्या इनकी जो मेरी जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये तीनों सेटिंग्स में सेम आ रही हैं, या एक सेटिंग में मैंने डिफरेंट ऑब्जर्व किया, दूसरी सेटिंग में डिफरेंट और तीसरी सेटिंग में डिफरेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। अब हम एक दूसरे टूल की बात करते हैं, और ये जो टूल है ये है इंटरव्यू, विच इज़ a very important tool of you know technique of data collection, or most of the time in narrative research, in ethnography, and even in case study we conduct interviews. अच्छा, अब अगर हम बात करें इंटरव्यूज़ की, तो इंटरव्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। There are 3 types of interviews. The first one is structured interview. Structured interviews में questions are already set, और you do not even change the language and order of questions. अच्छा, ये जो इस टाइप का जो हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं ये आम तौर पे बिहेवियरल असेसमेंट के लिए होता है। लाइक अगर आप
कोई रिक्रूटमेंट इंटरव्यू है जिसमें जो है वो आपके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को असेस किया जा रहा है, तो इसमें हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ करते हैं। आमतौर पे आर्मी सिलेक्शन में जो इंटरव्यू होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है। वहाँ पे जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज और क्वेश्चन का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल चेंज नहीं होता, और उनके जो मीनिंग्स हैं वो भी प्री डिफाइंड होते हैं कि अगर आपने ये बोला तो इसके मीनिंग ये है, और अगर आपने ये आंसर दिया तो इसके मीनिंग ये होंगे। तो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी के साथ जो है वो आपके बिहेवियर को असेस किया जाता है। दूसरे टाइप का इंटरव्यू जो कि हम क्वालिटेटिव रिसर्च में कंडक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड semi structured interview. And in semi structured interview you do have only a rough गाइडलाइन और सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस जिनके ऑर्डर चेंज हो सकते हैं, जिनकी वर्डिंग चेंज हो सकती है और रिफ्रेज हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिलीट या कुछ नए क्वेश्चंस ऐड हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर रिव्यू और द प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग, रिसर्चर जो है वो अ सेट ऑफ क्वेश्चन डेवलप कर लेता है और उनको लेके फील्ड में जाता है। जब वो फील्ड में इंटरव्यू स्टार्ट करता है पार्टिसिपेंट के साथ, तो फिर पार्टिसिपेंट का मूड देखते हुए, सेटिंग को देखते हुए, जो एक रेपो वहाँ पे बिल्ड हो रही है या जो इंटरेक्शन हो रहा है, रिसर्चर जो है अपने क्वेश्चंस को ऑल्टर करता है या उनके ऑर्डर को चेंज करता है। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन एंड डिज़ायर्ड टाइप ऑफ इंटरव्यू टेक्निक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। और इसके बाद एक और टाइप ऑफ इंटरव्यू होता है विच वी यूजुअली यूज़ फॉर ग्राउंडेड थेरी, एंड दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू इज़ कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। जब हमें पहले से कुछ पता ही नहीं होता कि उसके हवाले से लिटरेचर रिव्यू भी बहुत ही लिमिटेड होता है या होता ही नहीं है, या हमें उस सेटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, तो हम एक अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के साथ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मे बी हम ब्लैंक माइंड के साथ जाते हैं और हम कहते हैं कि जी ठीक है, हम इनिशियली स्टार्ट करेंगे, एक रेपो बिल्ड करेंगे, देन हम पूछेंगे कुछ उस हवाले से ना, और फिर हमें जो भी सेटिंग बनती जाएगी, जो क्वेश्चंस हमारे जहन में आते जाएंगे वो हम पूछते चले जाएंगे। तो वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ प्रिफर्ड एंड सजेस्टेड कि आप अनस्ट्रक्चर्ड के साथ जाएं और फिर उसके बाद उसको सेमी स्ट्रक्चर करें। फॉर एग्जांपल, जो आपका फर्स्ट इंटरव्यू हो जिसमें आप रेपो बिल्डिंग कर रहे हो, उसमें आप अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के साथ जाएं और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कंडक्ट करें और फिर दूसरी दफ़ा जाके उसको सेमी स्ट्रक्चर्ड करें। सो इन दिस वे यू कैन गेट एन एक्चुअल पिक्चर और मैक्सिमम you can collect maximum information about the phenomenon. So these are the three types of interviews. अब ये इंटरव्यूज़ करा किसके ज़रिए जाएगा, इसके लिए टूल क्या होगा। ये जो टूल है, ये टूल कहलाता है इंटरव्यू प्रोटोकॉल या इंटरव्यू गाइडलाइन या इंटरव्यू शेड्यूल। ये तीन इसके नाम हैं, तीनों नाम वैलिड हैं। जब हम इंटरव्यू प्रोटोकॉल की बात करते हैं, देखिए प्रोटोकॉल को दो सेंस में यूज़ किया जाता है, डिफरेंट बुक्स हैं। जैसे जब मैं प्रोटोकॉल की बात करूँगी तो एक प्रोटोकॉल, तो इंटरव्यू प्रोटोकॉल ये होता है कि हम कोई सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लीडिंग क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आंसर मौजूद होगा, कोई हरासमेंट नहीं होगी, थ्रेट नहीं होगा, जो है कोई पर्सनल क्वेश्चंस नहीं होंगे, ड्यूरिंग इंटरव्यू या आफ्टर इंटरव्यू या बिफोर इंटरव्यू कोई ब्राइब नहीं होगी, कुछ उससे कोई जो है ना कोई गिफ्ट्स या कुछ ऐसी चीज़ों का तबादला नहीं होगा जो कि हमारे रिसर्च प्रोटोकॉल में शामिल ना हो, और जो है एक सब्जेक्टिविटी को या पर्सनल फीलिंग को रिड्यूस किया जाएगा। एक तो प्रोटोकॉल वो है, और एक और टर्म जो कि कुछ बुक्स में है, वो जो ये क्वेश्चंस हैं उनको भी वो प्रोटोकॉल कहते हैं। उनके लिए जो सही टर्म है जिसको क्रेसवेल कहता है, वो कहता है इंटरव्यू शेड्यूल, और इसको जो है पैटर्न जो है वो इंटरव्यू गाइडलाइन भी कहता है। सो आप जो है वो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वो टर्मिनोलॉजी यूज़ करें जो कि पॉपुलर हो, जो कि नोन हो, क्योंकि इंटरव्यू प्रोटोकॉल के मीनिंग डिफरेंट हो सकते हैं। सो एक चीज़ तो ये इंटरव्यू जो स्केड्यूल है वो डेवलप कैसे किया जाए।
आपके पास इनिशियली कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और जो आपके इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं, इट शुड नॉट बी more than it should not be more than 6 to 7. अब इसके सब क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट इसके जो है वो जो मेन क्वेश्चंस हैं वो इतने ज़्यादा ना हो, और कोशिश करें कि ये जो आपका इंटरव्यू है ये 15 to 30 मिनट्स के दरमियान ख़त्म हो जाए, क्योंकि ज़्यादा जो डिटेल या बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का जो इंटरव्यू है ये भी जो है वो इरिटेट करता है रिस्पोंडेंट को, और फिर आप उससे एक्चुअल रिस्पॉन्सेज नहीं कलेक्ट कर सकते। तो जितना शॉर्ट होगा और जितना फोकस होगा उतने आपके पास रिस्पॉन्सेज आएंगे। हाँ, रेपो इतनी ज़्यादा बिल्ड हो जाए या कोई सेकंड आप सेटिंग कर सकते हैं उसके साथ, लेकिन जो फर्स्ट सेटिंग है या जो एक सेटिंग है, इट शुड नॉट बी मोर देन 30 मिनट्स। तो इस बात का भी ख्याल रखना है। इसके बाद जो थर्ड टूल है दैट इज़ डॉक्यूमेंट एनालिसिस। डॉक्यूमेंट एनालिसिस में या डॉक्यूमेंट रिव्यू में आपके पास डिफरेंट मॉडल हो सकते हैं। सम टाइम आप जो डेटा कलेक्शन के लिए, अगर मैं टीचर्स की बात करूं तो आप उनके लेसन प्लान्स रिव्यू करते हैं, उनके जो है वो स्कीम ऑफ स्टडी रिव्यू करते हैं, उनके रिजल्ट्स रिव्यू करते हैं। सो आपका जो फोकस है वो बताता है कि आपको रिव्यू क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको रिज़ल्ट रिव्यू करना है तो फिर आप उनके रिज़ल्ट्स ही रिव्यू करेंगे, और उसके लिए उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हैं कि उसका लेसन प्लान कैसा था, उसने एक्टिविटीज़ कौन कौन सी दी, उसने जो है वो उसकी जो इनिशियल जो प्लानिंग थी या जो उसका स्कीम ऑफ स्टडी था वो किस हद तक जो है वो जो है फोकस था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स तो नहीं थे, या बहुत ज़्यादा सिलेबस तो नहीं था जिसकी वजह से बच्चों को जो है ना बर्डन बहुत ज़्यादा था और अचीवमेंट रेट कम हुआ। सो यस, यू कैन डू दीज थिंग्स, बट टीचर के पर्सनल जो इश्यूज़ हैं अगर वो रेलेवेंट नहीं हैं तो उसको प्लीज़ ना देखा जाए, ठीक है। हाँ, जो चीज़ भी आपकी रिसर्च को सपोर्ट कर रही है उसको आप ज़रूर देखें, और वो आपके ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो अचीव करने में अगर जो है हेल्पफुल हो। सो दीज 3 आर दी टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन। The fourth technique, which is actually the part of data collection, it is the part of interviews. This is focus group discussion. इंटरव्यूज़ को कभी जब भी हम नाम लेंगे इंटरव्यूज़ का, इट मीन्स 1-to-1, इट मीन्स फेस टू फेस, और नॉट ओनली अगर फेस टू फेस नहीं भी है तो 1-to-1। लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा है, अगर आप टीचर्स का इंटरव्यू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली टीचर्स की क्वांटिटी कम होती है, बट अगर आप स्टूडेंट्स का इंटरव्यू कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सो फिर स्टूडेंट्स की रिप्रेजेंटेशन को कैसे आप करेंगे, इंश्योर करेंगे? सो यू कैन कंडक्ट अ फोकस ग्रुप डिस्कशन। फोकस ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि वो जो आपकी पार्टिसिपेंट हैं, जो कि आपकी पर्पजिव सैम्पलिंग के थ्रू, जो कि आपके रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन से आपने एक ग्रुप ड्रॉ किया, या आपका जो सैम्पल था उसमें से आपने डिफरेंट स्मॉल ग्रुप्स ड्रॉ किए, लाइक यू हैव सैम्पल ऑफ 30 स्टूडेंट्स। सो आपने 3-3 के ग्रुप से 10 ग्रुप्स बना लिए, आपने 5 के ग्रुप से 6 ग्रुप बना लिए। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कितना उसको फोकस रखना चाहते हैं, कितना आप उसको स्मॉल ग्रुप रखना चाहते हैं, बट it should not be less than 3 and it should not be more than 7. सो आपने जो है, सपोज़ अगर मैं 5 का ग्रुप बना रही हूँ विच इज़ मोस्ट डिज़ायरेबल एंड सूटेबल, सो सजेस्टेड भी है कि 5 का ग्रुप जो है वो ज़्यादा सही होता है, और टाइम जो है ना वो भी है, जिसे कहना चाहिए इकोनॉमिकली भी है कि आप उसमें टाइम सेविंग भी होती है और डेटा भी आ जाता है। उसके लिए जो है आप जो 5 का जब आप ग्रुप बनाते हैं तो आपने जो है वो क्वेश्चंस कितने पूछना है। अब आप 1-to-1 में तो आपने 30 मिनट्स का एक इंटरव्यू किया और आपने 7-8 क्वेश्चंस पूछे, लेकिन जब आप फोकस ग्रुप करने जा रहे होंगे, सो यू शुड नॉट आस्क मोर देन 3 क्वेश्चंस।
और आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टार्ट किया, एक बच्चे से एक क्वेश्चन पूछा और वो क्वेश्चन आपने 5 बच्चों से पूछा और उस एक क्वेश्चन का आंसर आपको लेने में 1 मिनट लगा और आपने 5 स्टूडेंट से सेम क्वेश्चन इफ़ यू आस्क टू 5 स्टूडेंट, सो आपको 5 मिनट्स लगे। और फिर बीच में ट्रांजिशन टाइम होता है, फिर कोई बीच में बोल जाता है। सो आप जो है इस पे जो है आप 3 क्वेश्चंस करते हैं तो ये आपको 20 मिनट्स लगते हैं। और फिर उसके बाद जो 20 मिनट्स के बाद भी आपके पास 10 मिनट्स बचते हैं, जिसमें जो है आप अगर कोई 10 मिनट्स वाक़तन बच रहे हैं तो फिर आप जो है वो कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो फोकस ग्रुप डिस्कशन में आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम होते हैं, बट यू लेट स्टूडेंट्स टू रिस्पॉन्ड। अच्छा, अब हर चीज़ के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। सो इसके एडवांटेजेस तो ये हैं कि ये टाइम एफिशिएंट है और रिसोर्स एफिशिएंट है, बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जो एक बच्चे का रिस्पॉन्स है, दूसरा बच्चा उससे इंस्पायर्ड हो जाता है और वो जो है उसी टाइप का कोई रिस्पॉन्स देने की कोशिश करता है, या उसे लगता है कि जो मेजॉरिटी की राय है, फॉर एग्जांपल 2 या 3 स्टूडेंट्स ने सेम रिस्पॉन्स दिया तो जो फोर्थ है वो उससे डेविएट करने में या उसको उससे निगेट करने में या कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट देने में थोड़ा सा हेजिटेट होता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर इसको जितना स्मॉल रखेंगे तो उतना ये जो है वो आपको एक्चुअल रिस्पॉन्सेस आएंगे, अदरवाइज़ ये ग्रुप बड़ा होता जाएगा और आपके रिस्पॉन्सेस जो हैं वो जो एक ग्रुप प्रेशर है ना वो वहाँ पे नज़र आता जाएगा। दूसरी बात ये है कि एक और जो डिसएडवांटेज है इसका कि जो रिस्पोंडेंट हैं वो एक साथ बोलने लगते हैं, तो वो जो मैनेज करना और रिकॉर्ड करना वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। सो आपको शुरू में ही कुछ जो हैं वो रूल्स सेट करने होंगे और रिस्पोंडेंट्स को बताना होगा कि इसके लिए जो है वो इसके ये रूल्स हैं, सब एक साथ नहीं बोलें, एक का दूसरे की राय से मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है, यू शुड हैव योर ओन ओपिनियन। सो आपको यहाँ पर अपना ओपिनियन शेयर करना है। जो है आपको दूसरे की राय से अगर आप जो है वो डिफ़र भी कर रहे हैं, सो यू हैव टू डिसएग्री इन एग्रीएबल मैनर। आम तौर पे ये जो आप टॉक शोज़ देखते हैं, पॉलिटिकल टॉक शोज़ देखते हैं, वहाँ पर आम तौर पे ये चीज़ शुरू हो जाती है कि लोग जो हैं वो आम तौर पे मतलब समटाइम तो ऐसा लगता है लड़ना ही शुरू कर देते हैं क्योंकि वो दूसरे की राय से मुत्तफ़िक नहीं होते। तो ये भी हमें ट्रेन करना है पार्टिसिपेंट्स को कि आपने अपनी बारी का इंतज़ार करना है और आपने जो एथिक्स हैं उनको वायलेट नहीं करना है। तो एक तो ये बात। सो अगर मैं आपने आज के डिस्कशन को सम अप करूं तो आज हमने डेटा कलेक्शन टेक्निक्स की बात की है और हमने डेटा कलेक्शन टेक्निक्स में हमने डिफरेंट टेक्निक्स देखी। लाइक हमने देखा कि डेटा कैन बी कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशंस की हमने टाइप्स भी डिस्कस करी। ऑब्जर्वेशन कैन बी कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ चेकलिस्ट आर चेकलिस्ट एंड इवन रूब्रिक, जहाँ पे जो बिहेवियर है वो ऑलरेडी डिटरमिन है एंड यू हैव टू ओनली पुट अ टिक ऑन इट, बट दिस इज़ नॉट इनफ क्योंकि वहाँ पर आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं जिसको आपने अपने रूब्रिक में या अपनी चेकलिस्ट में ऐड नहीं किया होता और आप एक्चुअल सेटिंग में जाते हैं तो आपको पता चलता है। तो एक और तरीका जो ये ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करने का वो है डिस्क्रिप्टिव नोट्स, और डिस्क्रिप्ट नोट्स आर 2 टाइप्स, डिस्क्रिप्टिव एंड रिफ्लेक्टिव नोट्स, ठीक है। और वहाँ पर हम कुछ क्रिटिकल इंसिडेंट्स भी रिपोर्ट करते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ जो कि हमने वो देखी, दूसरा जो हमने टेक्निक देखी वो थे इंटरव्यूज़, और इंटरव्यूज़ के भी हमने 3 टाइप्स डिस्कस किए। द फर्स्ट वन इज़ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़, द सेकंड वन इज़ अनस्ट्रक्चर्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ एंड द थर्ड वन इज़ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़। सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ को हम इन डेप्थ इंटरव्यूज़ भी कहते हैं। इसके लिए जो टूल्स या इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है फॉर रिकॉर्डिंग रिस्पॉन्सेज उसको हम इंटरव्यू शेड्यूल या इंटरव्यू गाइडलाइंस भी बोलते हैं। और इसके भी मैंने कुछ रूल्स बताए कि हाउ टू रिकॉर्ड रिस्पोंडेंट्स रिस्पॉन्सेस। आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी यूज़ कर सकते हैं टू रिकॉर्ड रिस्पॉन्सेस एंड यू कैन टेक मैनुअल नोट्स ऑल्सो।
अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं या आप मैनुअल नोट्स ले रहे हैं, दोनों सूरतों में आपको कंसेंट लेना ज़रूरी है कि हम जो आप जो हमें कह रहे हैं वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर वो आपको रिकॉर्डिंग की, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की परमिशन नहीं देते हैं तो यू हैव टू टेक मैनुअल नोट्स। और इसीलिए पहले कहा जाता है कि आप पहले एक रेपो बिल्ड कर लें, देन आप उस पर काम करें। थर्ड जो टेक्निक मैंने डिस्कस की, इट वाज फोकस ग्रुप डिस्कशन विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू, बट इन इंटरव्यू वी कंडक्ट इंटरव्यू ऑन फेस टू वन टू वन बेसिस। जब हम एक वन टू वन बेसिस पे इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, जबकि जो फोकस ग्रुप डिस्कशन है उसमें हम ग्रुप के साथ डिस्कशन करते हैं। ये हम जब करते हैं जब हमें रिसोर्स और टाइम सेविंग करना होती है। हमारे पास अगर नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और हम अगर उन नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स से बात करना चाहते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स से बात करना चाहते हैं, तो हम फोकस ग्रुप डिस्कशन करते हैं। और ये फोकस ग्रुप डिस्कशंस जो हैं ये आमतौर पे हम केस स्टडी में कर रहे होते हैं, या फिर हम इथनोग्राफी में भी कभी कर रहे होते हैं, बट बहुत ही लिमिटेड इसका स्कोप है। आमतौर पे इथनोग्राफी में हम इन डेप्थ इंटरव्यू कर रहे होते हैं, बट अगर हम फोकस ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो फिर उसके लिए उसका उसूल ये है कि यू हैव टू राइट ओनली वन क्वेश्चन एंड यू हैव टू गिव सफिशिएंट टाइम टू रिस्पोंडेंट टू शेयर देयर एक्सपीरियंस। अच्छा, और केस स्टडी में कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर आप केस के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। इसका जो नंबर ऑफ़ रिस्पोंडेंट्स हैं वो 3 to 7 हो सकते हैं, नॉट लेस देन 3, नॉट मोर देन 7, ठीक है। फिर उसके बाद एक और चीज़ जो मैंने डिस्कस की, दैट इज़ डॉक्यूमेंट एनालिसिस। इन डॉक्यूमेंट एनालिसिस हमने ये डिस्कस किया कि आपके पास जो है कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको हम एनालाइज करते हैं। समटाइम इन आर्काइवल रिसर्च आप डॉक्यूमेंट एनालिसिस ही करते हैं और आप अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव को देखते हुए उसका डॉक्यूमेंट एनालिसिस करते हैं कि ये पर्टिकुलर इवेंट या ये पर्टिकुलर इंसिडेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें किस तरह रिपोर्ट की गई। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, अगर मैं पाकिस्तान मूवमेंट को डिफरेंट बुक्स में देखना चाहूँ कि डिफरेंट जो उस ज़माने में जो किताबें लिखी गई, ये 1947 से पहले या 1947 के बाद के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें इस इंसिडेंट को कैसे रिपोर्ट किया गया, सो मेरा जो फोकस होगा वो मेरे रिसर्च ऑब्जेक्टिव से मैच कर रहा होगा। अदरवाइज़ बुक में तो डॉक्यूमेंट्स में तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट मुझे फोकस रहना है और मैं उस फोकस को देखते हुए डॉक्यूमेंट एनालिसिस करूँगी। I just wanted to give you one example. I conducted a document analysis in my PhD research और मैंने उसमें document analysis में देखा कि cooperative learning which is a phenomenon, how it is discussed and addressed in science textbook। और मैंने देखा कि जो एक्टिविटीज़ हैं, जो एक्सरसाइजेज़ हैं, फॉलो अप एक्सरसाइजेज़ हैं, उनमें जो ग्रुप वर्क दिए गए हैं या जो प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं वो किस तरह कोऑपरेटिव लर्निंग के जो प्रिंसिपल्स हैं या जो उसका स्ट्रक्चर है वो उससे कितना जो है ना मीट कर रहे हैं उसके स्टैंडर्ड को, इधर कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि बुक्स क्लेम कर रही हैं कि वो एक्टिविटी बेस्ड हैं और उनमें ग्रुप वर्क को प्रमोट किया जा रहा है। तो क्या ग्रुप वर्क का जो एक एक्चुअल एसेंस है वो वहाँ एड्रेस किया जा रहा है या नहीं। सो मैंने इसको इस तरह स्टडी किया। अदरवाइज़ मैंने ना कंटेंट देखा, ना मैंने पिक्चर्स देखी, ना मैंने कोई और चीज़ देखी, मैंने सिर्फ फॉलो अप एक्सरसाइजेज में ग्रुप वर्क को देखा। सो आपका फोकस होना चाहिए। मैंने रिवाइज़ किया आज के मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको, एक सम अप भी कर दिया। अब जो है आपके लिए एक होम टास्क है और होम टास्क ये है कि एज आई हैव ऑलरेडी आस्क यू टू कंडक्ट 5 मिनट ऑब्जर्वेशन, नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अब आपने अपने ही टॉपिक से रिलेटेड एक इंटरव्यू स्केड्यूल डेवलप करना है और इंटरव्यू स्केड्यूल डेवलप करके जिसमें जो है नॉट मोर देन 5 क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू योर टॉपिक। और आप मेरी स्लाइड्स यहाँ पर हैं, वो भी आपको सपोर्ट करेंगी। ज़ेबडेस्क पे मेरी स्लाइड अपलोडेड है
आपको वो भी सपोर्ट करेंगी। दूसरा, आप बुक्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं कि इंटरव्यू स्केड्यूल बनाया कैसे जाता है, व्हाट आर द गाइडलाइंस टू डेवलप अ इंटरव्यू स्केड्यूल। और फिर उसके बाद आपने एक 5 मिनट का इंटरव्यू कंडक्ट भी करना है, जो ड्यूरेशन है इट शुड नॉट बी मोर देन 5 मिनट्स। और आपने एक इंटरव्यू कंडक्ट करना है। जब वो आप इंटरव्यू कंडक्ट करके फिर उसकी एक रफ़ ट्रांसक्रिप्शन करनी है। ये एक्टिविटी जो है, ये 5 मिनट का इंटरव्यू जो है, इसका जो ट्रांसक्रिप्शन है, आई थिंक इट विल टेक मोर देन 30 मिनट्स। ये आपके 30 मिनट्स लेगा। सो ये एक 1 डे एक्टिविटी होगी जिसमें आप एक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे और इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद आप जो है वो उसका जो है उसको ट्रांसक्राइब करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब आप मेरे पास आएंगे तो आप ना सिर्फ ये कि मुझे अपना अच्छा आज इसी वीक आपने जो ये अब हमारा नेक्स्ट वीक आ रहा होगा, आपने जो इंटरव्यू आप रिकॉर्ड करेंगे, आप मुझे वो अपना इंटरव्यू व्हाट्सएप करेंगे। अपने मोबाइल को यूज़ करिए और इंटरव्यू रिकॉर्ड करिए। और फिर जब आप नेक्स्ट क्लास में मेरे पास आएंगे सो आप अपनी ट्रांसक्रिप्शन मेरे पास लेकर आएंगे इन हार्ड कॉपी। कोई भी मुझे ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्ट कॉपी में नहीं भेजेगा, बिकॉज आई विल नॉट चेक ट्रांसक्रिप्शन इन सॉफ्ट कॉपी। जब आप मेरे पास आएंगे तो आप 2 चीज़ें लेकर आएंगे, यानी आप अपनी ऑब्जर्वेशन नोट्स लेकर आएंगे जैसे भी आपने ऑब्जर्वेशंस किए हैं, और आप अपना इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्शन लेके आएंगे। एंड इन दिस वीक आप लोग मुझे अपना इंटरव्यू जैसे जैसे आप रिकॉर्ड करते जाएंगे आप फ़ौरन मुझे व्हाट्सएप करेंगे कि आपने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है। अच्छा, मेरा उस इंटरव्यू को सुनना शर्त नहीं है, बट आपकी सबमिशन शर्त है। ठीक है, आपकी सबमिशन शर्त है। तो मैं ये देखूंगी कि कितने लोगों ने मुझे इंटरव्यू सेंड किए, और मैं इसको जो है इसके जो है ना वो आपके मार्क्स में ऐड करूँगी कि आपने टाइमली विद इन दिस वीक मुझे इंटरव्यू सेंड किया है या नहीं किया है। तो कोशिश ये करें कि इसको बिगनिंग ऑफ द वीक अपना इंटरव्यू कंडक्ट कर लें। देन ट्रांसक्रिप्शन में यू कैन टेक टाइम। लाइक अगर आप मंडे ट्यूसडे को अपना इंटरव्यू स्केड्यूल बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लिटरेचर रिव्यू, सो वेडनेसडे को यू कैन कंडक्ट एन इंटरव्यू एंड वेडनेसडे यू कैन सेंड मी योर इंटरव्यू थ्रू व्हाट्सएप। आप मुझे व्हाट्सएप कर दें अपना इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी का इंटरव्यू 5 मिनट से एक्सीड किया तो ये भी फिर उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू, फोकस इंटरव्यू और उसकी ड्यूरेशन 5 मिनट्स हो। थैंक यू वेरी मच।